So we were seeing Hebrews chapter 5, where we were seeing elementary principles of oracles of God, and also that is like milk, and the word of righteousness, which is like solid food. हम जो थे हमने पिछले बार इब्रानियों का 5वां अध्याय हमने अध्ययन किया और उसमें हमने जो दूध के समान जो हमारा जो भोजन है वो हम लेते हैं, वो शुरुआत की शिक्षा है और उसके बारे में हमने पिछले बार हमने देखा। So the burden of the writer of the Hebrews is that Christians should not just remain as baby Christians, but they should grow to maturity. जिन्होंने इब्रानियों का पुस्तक लिखा, उनके दिल में ये बोझ था कि जो ख्रिस्ती हैं वो सिर्फ बालक बनकर ना रह जाएं, but they should grow to maturity. लेकिन उन्हें जो है एक सिद्ध मनुष्य बनना चाहिए। Today also the sad thing we can see around is most of the Christians are just happy with forgiveness of sin, justification, even baptism of the Holy Spirit. They, further than that, most of the Christians are not interested in the growth in Christian life. और अफसोस की बात यह है कि आजकल के ख्रिस्ती भी ऐसे ही रह गए कि वो सिर्फ अपने मन फिराने के बारे में और परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मा, इन सब बातों पर वो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिद्धता तक पहुंचना है उस पर वो ज्यादा जोर नहीं दे पाते। What is this word of righteousness, or you can say the solid food in Christian life? ये जो वचन हमने सुना, जो धार्मिकता का वचन है, जिसके बारे में हमने सुना कि वो एक ऐसा भोजन है जो हमें सिद्धता तक ले जाता है, वो क्या होता है? We can say it is taking up our cross and following Jesus, denying our self will. तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमें अपना क्रूस उठाकर चलना और अपने खुद की जो इच्छा है उससे इनकार करना, entering into rest in our Christian life, और परमेश्वर के आराम में प्रवेश करना, victory over sin, और जो पाप के ऊपर विजय पाना, sanctification, और शुद्धता या पवित्रता तक पहुंचना, increasing the fruits of the Spirit, and so on. और ऐसे ही जो पवित्र आत्मा के फल है उसमें बढ़ते जाना। We can see in chapter 6 verse 1 also, therefore leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of, so that verse 1 starts like that. तो हम देखते हैं कि 6वां अध्याय का पहला वचन भी ऐसे ही शुरू होता है, जहाँ लिखा है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। So we can see here that the writer is telling, let us press on to perfection, not just be satisfied with the elementary teaching. Let us press on to perfection. That's the burden of the writer of Hebrews. तो लेखक का ये बोझ है उनके मन में कि हम जो है शुरुआत की शिक्षा पर ही हम टिके ना रहें, लेकिन उससे आगे बढ़कर हम सिद्धता की ओर चलें। See, when many people hear about perfection, they think they fear, they have got a fear, or they think that this is an impossible situation. और जब भी लोग सिद्धता के बारे में सुनते हैं तो उनके दिल में एक भय बैठ जाता है और उन्हें लगता कि ये नहीं हो सकता है। See, all of us want perfect health. How many of us want
let me have a 99-degree fever, or let me have little bit of TB, let me have a little bit of cancer is there, that is okay. And none of us will, we don't even want the cold to remain or cough to remain in us or in our children. और उदाहरण के लिए हम सब एक बहुत ही अच्छी तरह हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें 99 डिग्री फीवर रहे, या हमें कुछ बुखार रहे, या हमें थोड़ा सा कैंसर हमारे में हो जाए, या थोड़ा टीबी हो जाए, और इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में हम ऐसा ही सोचते हैं। So just like we want perfect health for ourselves, God wants us that we should become perfect in our Christian life. जिस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने क्रिस्ती जीवन में, आत्मिक जीवन में भी हम सिद्ध रहें। I don't know whether it's Tozer or somebody who said that perfection is a path to which we enter. And once we enter into that path, there are miles and miles in that Christian path. तो एक परमेश्वर के दास टोजर ने ऐसे कहा कि जो सिद्धता है वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, और एक बार हमने उस रास्ते में प्रवेश किया तो कई मीलों तक हमें इस रास्ते में चलना पड़ता है। But here the writer is telling, let us not lay again the foundation of the foundational teaching. और यहाँ जो लेखक है वो कहते हैं कि हमें फिर से जो है जो शुरुआत की शिक्षा है उस नींव को नहीं डालना चाहिए। See, what we have to remember is this foundation has to be laid properly in all of our Christian life. Then only we can go ahead to perfection. और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें जो है ये जो नींव है वो हमें बहुत ही अच्छी तरह डाल लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। So what are these foundational teaching? ये जो शुरुआत की शिक्षा है वो क्या है? So it's written, first of all, repentance from dead works. तो पहली बात जो लिखी गई है वो है मरे हुए कामों से मन फिराना। So we can say it is repentance from sin, that is first of all, and also from so many of dead works. और इसका ये मतलब हुआ कि हम अपनी पापों से मन फिराएं और जो मरे हुए काम हैं उससे भी मन फिराएं। Repentance is a total turning, a 180-degree turn, total turning from self-centered life to a Christ-centered life. तो मन फिराने का मतलब ये है कि हम पूरी तरह जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उस रास्ते से मुड़कर पूरी तरह हम उससे मुंह मोड़कर हम आगे बढ़े। और then what brother? A self-centered life to a Christ-centered life. और जो स्वार्थता की जीवन है उससे हटकर हम जो है एक जो शिव पर जो केंद्रित होकर हम आगे बढ़े। So here it's written about repentance from dead works. और यहाँ लिखा है कि मरे हुए कामों से मन फिराना। So what are these dead works? तो ये जो मरे हुए कामों का मतलब क्या है? We can say it's works that are not coming out of faith. तो उसका ये मतलब है कि जो विश्वास से जो काम नहीं आता है उसे हम मरे हुए काम कहते हैं। We can also say they are works which are not coming out of love of Jesus, love of God. और एक दूसरी तरह हम इसके बारे में कह सकते हैं जो कार्य हम प्रेम से नहीं करते हैं।
they are also works which are done to ease our conscience. और वो ऐसे काम होते हैं हमारे विवेक को जो हम शांत करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसे करते हैं. Say for example, we can think that, oh, I have to do something with the Lord, so let me. So I feel guilty, and maybe I can just distribute tracts, so just to ease my conscience that I can do certain things. So that's not the way God wants me to do. God wants everything to come out of love to Him. तो जब भी मैं कुछ ऐसे काम करूं, जैसे मेरे विवेक को शांत करने के लिए, जैसे मुझे लगता है मुझे कि प्रभु के लिए मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे मेरे मन में एक बोझ आ जाता है और मैं इसीलिए करती हूँ उसे कि मेरा विवेक शांत हो जाए और प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम के कारण नहीं कर रही हूँ, तो वो मरे हुए कामों में आता है. Then it's written about faith towards God. तो फिर लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करना. Faith is helpless dependence on God. जो विश्वास है उसका ये मतलब है कि हम पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखें. Faith in forgiveness of sin, faith that it's only through faith we can get justification by faith, faith for baptism of the Holy Spirit, all these are part of it. हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और परमेश्वर ने हमें जो है धार्मिक ठहराया है और पवित्र आत्मा भी हमें दिया है. Then it's written about doctrines of baptism. और उसके बाद लिखा है बपतिस्मों के बारे में. So that is water baptism and baptism in the Holy Spirit. और वो है पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा. Then it's written about laying on of hands. और लिखा है हाथ रखने. The Bible tells of laying on of hands for, say, there are cases where apostles have laid hands on people and they got baptism with the Holy Spirit. और हमने ऐसे पढ़ा है प्रेरितों के पुस्तक में कि जो प्रेरित हैं उन्होंने लोगों पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला. In I think Acts chapter 6 is written that apostles have laid hands and they for ordaining them for certain ministries. और फिर लिखा है कि प्रेरितों ने कुछ लोगों पर हाथ रखा कि वो सेवकाई में कार्य करें. And also laying on of hands for receiving different gifts of the Holy Spirit. और फिर जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक मिलने के लिए. Then it's written about resurrection of the dead. और फिर लिखा है मृतकों से जी उठना. So there is one day we all are going to be resurrected, and discussions about that. We are going to get a new body and all those things. और एक दिन हम सब जो हैं मरे हुओं से उठेंगे और हमें एक नया शरीर मिलेगा और इन सब बातों के बारे में. Then it's written about eternal judgment. और फिर अंतिम न्याय के बारे में. Yeah, both the believers and unbelievers both are going to stand before the judgment seat of God. और जो अंत के दिन में जो विश्वासी हैं और अविश्वासी हैं दोनों ही परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ेगा. We read about resurrection of the righteous and the wicked. और जो पुनरुत्थान के बारे में हमने सुना है, जो धर्मियों का पुनरुत्थान और जो दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान. All that we have done in our life, everything is going to be judged on that day. जो भी हमने जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, जो भी कार्य हमने किया है वो सब जो है परमेश्वर के सिंहासन के आगे उसका न्याय होगा. So we can say all these are written here foundational teaching. ये सब बातें जो है शुरुआत की शिक्षा है. It is
we can say it is like the laying of a foundation for a building. तो ये इस प्रकार है जैसे एक इमारत बनाने के समय पहला जो है एक नींव डाला जाता है. Just imagine a person wants to build a 10-story building, but he has put the foundation and then just left it. Then he has gone for some other business. I mean, that will be a total foolishness. जैसे एक व्यक्ति जो है 10 माले का इमारत बनाना चाहता है और वो जो है नींव डालकर फिर और कुछ बातों में वो लग जाता है, तो ये बहुत ही मूर्खता की बात हो जाती है. So that is how in a Christian's life also, if he's just interested in these matters only, but not in things where he can go on with the Lord into a higher Christian life. तो वैसे ही अगर एक व्यक्ति जो है इन्हीं बातों पर अपना मन लगाता रहता है और वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो ऐसा ही होता है. So the burden of the Hebrew writer is, let us press on to perfection. तो जो इब्रानियों का लेखक है वो उसके दिल में इसी ये भार है. I heard of a story of some people who want to go for mountaineering. मैंने ऐसे कुछ एक कहानी सुनी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पहाड़ पर सैर करने के लिए जाना चाहता था. So all these people were climbing the mountain, but as they were climbing, there was such a terrible storm and rain and thunder and lightning and all these things were there. लेकिन जब ये लोग जा रहे थे इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, तब बहुत ही तेज आंधी और तूफान और गरजना और बरसना हुआ. So all the people said, let's go back to our camp because things are quite this situation is quite bad. तो लोगों ने कहा कि चलो हम लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि हालात बहुत ही खराब है. But the leader of the party said, no, we have to climb. लेकिन जो उनमें से जो उनको आगे ले जा रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चढ़ना ही पड़ेगा. So what happened is that as they were climbing, after some time, all this lightning and thunder and everything was down in the valley, but right on top of the mountain, everything was so calm. तो ऐसे जैसे वो चढ़ते जा रहे थे, तो बाद में उन्होंने देखा कि जो आंधी तूफान वो सब सिर्फ नीचे वो जो घाटी था उधर ही ये सब हो रहा था, लेकिन ऊपर जो पर्वत पर सब बहुत ही शांत था. See, this is exactly what should happen in our Christian life also. तो ऐसे ही हमारे क्रिस्ती जीवन में भी होता है. See, when there is fighting and anger and jealousy and strife and all these things are there, we are just like those mountaineering people. We are right down in our Christian life. That just like they were down in the mountain, they were our Christian life. In our Christian life also, we are in a very low level. तो ऐसे ही जब हमारे क्रिस्ती जीवन में भी हमारे अंदर क्रोध और ईर्ष्या और जलन ये सब होता है, तो हम भी उसी तरह हैं जैसे वो लोग जो पहाड़ के एकदम नीचे थे, वैसे उसी स्तर पर हम भी. So just like the leader of the party said, let's climb. The Holy Spirit is telling, no, you are not to stay here. We have to climb to the top of the mountain. तो इसी प्रकार जैसे उस नेता ने उनसे कहा कि चलो हमें आगे बढ़ना है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमसे कहता है तुम्हें इधर नहीं रहना है, तुम्हें आगे बढ़ना है. So what happens is as we climb, we'll come to, as we read in Hebrews chapter 4, we'll come to a rest in our Christian life. तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही जैसे इब्रानियों का 4 अध्याय में लिखा है कि एक आराम के स्थान पर हम पहुंच जाएंगे.
There can be so much things around us, but in our heart, we can say there can be total rest. हमारे चारों तरफ बहुत जो परिस्थिति है बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर हमारे दिल के अंदर जो है शांति का माहौल रहता है. It's a life of freedom from anxiety, freedom from anger, freedom from jealousy, freedom from strife. God wants to take us to such a life. तो प्रभु हमें ऐसे ही एक जो क्रोध से मुक्ति, जलन से मुक्ति और जो है मतभेद से मुक्ति, इन सब चीजों से प्रभु हमें मुक्ति देना चाहता है और हमें शांति का जीवन देना चाहता है. For that we have to go the way of the cross every day in our Christian life. और इसके लिए हमें हर रोज जो है अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा. We can see in verse 3, this we will do if God permits. और तीसरा वचन कहता है कि परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले. No, this we'll do if God permits. तो तीसरा वचन, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे. In other words, God has to permit us for us to go ahead in our Christian life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें इजाजत देना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ें. As long as we are proud in our Christian life, we will not come to such a life. अगर हम घमंडी हैं अपने क्रिस्ती जीवन में, तो प्रभु हमें इस जीवन तक पहुंचने के लिए प्रभु हमें इजाजत नहीं देंगे. God has to make us humble and broken people. तो प्रभु चाहता है कि हमें नम्र करे और हमें तोड़ दे. We have to become people who are nobodies in our sight. तो हमें अपने आप को शून्य समझना पड़ेगा. Bible says of entering through the eye of the needle. तो प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें जो सुई का जो छेद है उसमें से हमें अंदर जाना पड़ेगा. See, if you are telling even a dog to enter through the eye of the needle, it's impossible. अगर हम एक कुत्ते को भी कहेंगे कि वो एक ऐसे जो सुई का छेद है उसमें से बाहर निकले, तो वो असंभव है. But a virus or an amoeba can run through the eye of the needle. लेकिन एक जो कीटाणु है वो जो है ऐसे एक छेद में से वो घुस पाएगा. So God wants to make us people like that, people who are really small in our eyes. Then only we can go to this Christian life, So this way of righteousness, the word of righteousness, what is written in chapter 5, or as is written here, the path to perfection. जो धार्मिकता का वचन है जो 5वें अध्याय में लिखा है, अगर हमें उस रास्ते में हमें चलना है तो हमें उस कीटाणु के समान अपने आप को शून्य बनाना पड़ेगा. Now we can see in verse 4, it's written, it's a solemn warning is given. और हम चौथे वचन में देखते हैं कि एक चेतावनी दी गई है. It's written of Christians. It's written, it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift, have become partakers of the Holy Spirit, and verse 5, tasted the good word of God and the powers of age to come. तो चौथा वचन, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं. So just think of these 5 things to be enlightened, first of all. तो इन 5 बातों के बारे में हम सोचेंगे कि जो पहली बात है, अगर हमने ज्योति पाई है. See, when we come into Christian life, it is coming from darkness to light. जब हम अपने क्रिस्ती जीवन में हम शुरुआत करते हैं तो हम
जो अंधकार से ज्योति में प्रवेश करते हैं। So God, as is written, no, the God commands the light to shine out of darkness. So that is what happens when we are born again. परमेश्वर ऐसी आज्ञा देता है कि जो अंधकार से प्रकाश आए, तो वही कार्य हम में, जब हम विश्वास करते हैं, वो कार्य हम में होता है। Then it's written about tasting the heavenly gift of forgiveness of sin, heavenly gift of justification, heavenly gift of baptism in the Holy Spirit. और उसके बाद स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखने के बारे में लिखा है। उसका ये मतलब है कि हमने क्षमा को चखकर देखा है, और हमने जो है धार्मिकता पाया है प्रभु से, और पवित्र आत्मा का देन भी हमने पाया है। And it's written, third thing written is partakers of the Holy Spirit. और तीसरी बात जो कही गई है वो है पवित्र आत्मा में भागी हो जाना। So that is receiving the fullness of the Holy Spirit and receiving gifts of the Holy Spirit. तो इसका ये मतलब हुआ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना और पवित्र आत्मा के वरदान को पाना। So it's written about partaking of the Holy Spirit, then tasting the good word of God. और फिर लिखा है कि जो परमेश्वर का जो अच्छा वचन है उसका स्वाद चखना। So it is not written about reading God's word, it is written about tasting God's word. और यहाँ जो वचन पढ़ने के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर के उत्तम वचन को चखने के बारे में, का स्वाद चखने के बारे में लिखा है। That means God's word, we begin to taste the sweetness and wonder of God's word. तो इसका ये मतलब हुआ कि हम उसकी जो मिठास है उसे और उसकी भलाई को चखना जब हम शुरू करते हैं, उसके बाद lastly it's written about powers of age to come. और अंत में लिखा है कि आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद। So powers of age to come can refer to certain gifts of the Holy Spirit. तो जो आने वाले युग की सामर्थ का मतलब है कि जो पवित्र आत्मा का कुछ वरदान है उसके बारे में हो सकता है। It can also refer to healing, where we taste heavenly healing in our physical life. तो अब जब हम अपने शरीर में जो है चंगाई का अनुभव करते हैं उसके बारे में हो सकता है। So all these are referring to a Christian who has gone somewhat in Christian life. तो ये सब ऐसी बातें हैं जो एक क्रिस्ती व्यक्ति जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है उसके बारे में है। Then it's written, if he falls away. और फिर उसके बाद लिखा है, उसके बाद अगर वो भटक जाए। So say a person who is in ground level cannot fall. A person, say, imagine if you are climbing a tree. Imagine you have climbed some 10 feet. Falling away comes from there. If you are in the ground level, nobody falls. अगर हम एक पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो अगर हम जमीन पर हैं तो हमें गिरने की हम नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर हम 10 फुट तक अगर हम चढ़ गए तो हम उधर से गिर सकते हैं। So it's written, if we fall away, it's written it is impossible to renew them again to repentance. और छठवां वचन में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। See, what we should remember is here it's written about a person indulging in deliberate sin. तो ये ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो जानबूझकर जो है पाप में बार-बार गिरता रहता है। See, many times in our Christian life we can fall into sin. Say we can slip and fall, and we can get up immediately and confess it and go ahead in our Christian life. हमारे क्रिस्ती जीवन में कई बार ऐसे होता है कि हम फिसल कर हम गिर तो जाते हैं, लेकिन हम उठकर जो है फिर से
परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं। This is not written of such people. तो ऐसे लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है। It is written of people who continue to indulge in deliberate sinning. लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो जानबूझकर अपने मन से वो पाप में वो रुचि रखते हैं और उसे करते रहते हैं। Say, imagine you look at a bad picture. Imagine newspaper comes, just going through newspaper, you look at a bad picture and you sin there. That is not what is written there. तो अगर हमने एक जो न्यूज़पेपर देखा और उसमें कुछ ऐसे चित्र हैं जो अच्छे नहीं और उस पर हमारा आंख पड़ जाता है, इस बारे में Okay, sometimes it happens, you immediately repent, turn away, you forsake that sin, you mourn over it and repent of it. God can lead you into victory in such areas. लेकिन अगर हम मन फिराएंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमें विजयी बना सकता है इस क्षेत्र में। But if a person pays money and buys a pornographic book, that is a completely different matter. लेकिन अगर एक व्यक्ति पैसा देकर एक अश्लील जो चित्र हैं ऐसे एक पुस्तक को खरीदता है तो ऐसा व्यक्ति बच नहीं सकता। Or say in mobile you are keeping bad pictures deliberately. That is a completely different matter. और अगर एक व्यक्ति जो है अपनी मोबाइल में ऐसे अश्लील चित्र को रखता है तो ये अलग बात है। Or just imagine you are planning and doing some harm against another person. These are deliberate sins. तो अगर आप मन में योजना करते हैं और ऐसे आप योजना करते हैं कि किसी को दोष पहुंचाना है और ऐसे आप करते हैं तो ये जो है जानबूझकर आप पाप कर रहे हैं। See, the Old Testament in Deuteronomy 19 is written about, say, a person goes to the forest with an axe, and while trying to swing the axe, imagine that part flew away and hit a person, and the person dies. See, he can go to certain cities are made for such people that he can run to that city and be safe. जो व्यवस्था विवरण में ऐसे लिखा है कि अगर एक लकड़हारा जो है वो एक जंगल में जाता है और वो अपने जो हथियार है उससे वो पेड़ काटना चाहता है, लेकिन वो जो यंत्र है वो उसके हाथ से उड़कर किसी आदमी या व्यक्ति पर लग जाता है और वो मर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन दिनों में जो शहर थे वहाँ एक ऐसा जगह होता था जहाँ वो जाकर शरण ले सकते थे। That is not a deliberate act of murder. तो ये जो बात हुई वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। It's an accidental matter. ये एक दुर्घटना है, वो जानबूझकर नहीं हुई। That is completely different from a person deliberately taking an axe and hacking a person to death. वो जो है अगर एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर और किसी को घात पहुंचाता है और उसे मार देता है, उससे अलग है वो। So it's written, if a person is deliberately sinning, is written verse 6, he's crucifying again the Son of God and putting him to open shame. और अगर वो जानबूझकर कुछ करता है तो उसके बारे में 6वें वचन में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। So what he is actually doing is he's deliberately putting Jesus again on the cross and putting a nail into his body. तो यहाँ लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर
चढ़ा रहा है और उनके हाथों में फिर से कील ठोक रहा है। See, if we go that path of deliberate sin, that is an extremely dangerous sin. अगर हम जानबूझकर ऐसे पाप में हम अ, मन लगाते हैं और करते हैं उसे, तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। We can read of that in Hebrews 10 also. The writer of the Hebrews again warns a second time about such sins in Hebrews chapter 10. और इब्रानियों का 10वां अध्याय में भी ऐसे जो लेखक है वो फिर से चेतावनी देता है ऐसे पापों के बारे में। See, thing is that if we go in that path, we can say God has, as Brother Zach says, at some level God has put a red line. Now, if we cross that line, we can really lose salvation. तो जैसे ब्रदर जैक भी कहते हैं कि अगर ऐसा एक व्यक्ति करता रहता है तो प्रभु ने एक सीमा रखी है, अगर हम उसको पार कर लेंगे तो फिर जो हमारा जो उद्धार है उसे हम नष्ट भी कर सकते हैं। So we read in verse 7, for the earth that drinks rain that often comes upon it and bears herbs useful to those to whom it is cultivated, it receives blessing from God. But verse 8, if it bears thorn and briars, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. जैसे 7वें और 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। So whenever we cultivate something, what the reason why we cultivate it is that it should bear fruit. हम जब भी किसी पौधे को जोतते हैं या बोते हैं तो उसका ये उद्देश्य है कि वो फल लाए। So imagine we are imagine we are cultivating lady's finger or something like that. Now, if that plant is not bringing that fruit, we'll wait for some time, but if it's not, after a long time, it's not yielding any fruit, we'll cut it off. अगर हम उदाहरण के लिए अगर हम भिंडी का पौधा लगाते हैं और लेकिन वो जो है वो फल नहीं लाता है, वो भिंडी नहीं उगाता है, तो फिर हम थोड़ा देर दिन के लिए रुकेंगे, लेकिन बाद में हम उसको काट कर उसे जला देंगे। So that is, it's written here, if that earth is producing vegetations and herbs useful to the master, then that land will receive blessing from God. That means our life will be a blessing to God and others. तो जैसे यहाँ 7वें वचन में लिखा है कि जिन लोगों के लिए वो जोती और बोई जाती है, उनके काम का साग पात जाती है, तो वो परमेश्वर से आशीष पाती है। So, but if it bears thorns and briars, thistles, then that the end is being burned. It's written. लेकिन अगर वो कांटे और ऊंट कटारे उगाती है तो वो जो अंत में जलाया जाता है। So if in our Christian life, say our Christian life is a source of thorns, that means it brings a problem to others, brings a problem to our families. That's not God's will for any one of us. तो ऐसे ही हमारे क्रिस्ती जीवन में भी अगर हम कांटे उपजाते हैं, इसका मतलब अगर हम अपने जिन भी लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन्हें हम चोट पहुंचाते रहते हैं, तो ये जो है श्रापित या निकम्मी बात हो जाती है। So God wants our life to be a blessing to other people. प्रभु चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए। I heard of a story of
two plants talking to each other. मैंने एक कहानी सुनी जिसमें जो पौधे जो हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं. One is a camellia plant, and the other is uh, a bush, thorny bush. एक झाड़ है जिसका नाम है कैमिला और Chamomilla. कैमिला. Yeah, okay. हाँ, और दूसरा झाड़ जो है वो एक कांटे वाला झाड़ है. So this camellia plant is telling, if somebody stamps on me, I will bring out a nice flavor. तो वो जो कैमिला प्लांट है वो बोलती है कि अगर कोई मुझे रौंदेगा तो मेरा जो एक बहुत ही अच्छा सुहावना जो गंध है मैं सुगंध में दूंगी. That thorny bush said, if somebody stamps on me, I will really give a nice prick to that person. तो जो कांटेदार जो झाड़ है वो कहता है अगर कोई मुझे रौंदेगा तो मैं उसे चुभूंगा. So camellia plant said, this is my nature, I cannot change it. तो वो कहती है कि ये मेरा चरित्र है तो मैं इसे बदल नहीं सकती. The thorny bush said, this is also my nature, I also cannot change. तो वो जो कांटे वाला झाड़ है वो कहता है ये मेरा चरित्र है मैं भी इसे नहीं बदल सकता. God wants us to be people like that camellia plant, which is blessing, giving a blessing to other people. तो प्रभु भी चाहता है कि हम उस कैमिला पौधे के समान बने जो दूसरों के लिए एक आशीष बन जाता है. And verse 9, the writer of Hebrews says, beloved, we are confident of better things concerning you, as things accompanying salvation, though we speak in this manner. और 9वें वचन में लेखक कहता है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं. So what the writer of Hebrews is saying, even though we are speaking certain stern words, we believe that you are not like that. You are people who really you are people who are go on to become a blessing to other people. तो जो लेखक है वो कहता है कि अगर हम ऐसे जो कड़क बातें तुमसे कर रहे हैं फिर भी हम आपके बारे में ऐसे आशा रखते हैं कि आप दूसरों के लिए एक आशीष बनेंगे. And he's telling in verse 10, for God is not unjust to forget your work of labor, work and your labor of love, which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. और 10वें वचन में कहा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाएं जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रही हो. The Bible says that even if we give a cup of water to God's saint, there will be a reward for that. वचन में ऐसे कहा गया है कि अगर हम एक गिलास पानी भी किसी को दें, एक प्रभु के लोगों को देंगे तो उसका जो नतीजा है वो हमें मिलेगा. We can stop there. The remaining 10 verses we can see the next. और यहाँ तक ही हम आज अध्ययन करेंगे और आगे हम अगले हफ्ते देखेंगे. I want to share something. मुझे कुछ बताना है कि ब्रदर सैम ने एक मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों छोड़ने के लिए ये इब्रूस चैप्टर में लेखक हमें बताता है. ने आरंभ की बात क्या है, सैम ब्रदर ने अच्छी तरह से समझाई कि जब भी हम नए यीशु के पास आते हैं हम सबसे पहले हमने किया हुआ पापों को कबूली करते हैं, मन फिराव करते हैं, पर सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मरा और यीशु में बढ़ने के लिए हम इच्छा रखते हैं. ये सिर्फ आरंभ की बात ही है. लेकिन लेखक क्या कहता है, आरंभ की बात को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ो. यानी वो चाहता है कि अगर आप एक माँ की गोद में एक दूध पी रहे लेकिन आप हमेशा दूध पीते मत रहो,
और वो चाहता है कि आपको एक सहनो बना, अन्न खाने वाली सहन। 5:14 में लिखा है कि अन्न सहनों के लिए है, यानी दूध सिर्फ बच्चों के लिए है। यानी हम जब सिर्फ मन फिराव करते हैं या पश्चाताप करते हैं, सिर्फ एक आरंभ की बात है। तो लेखक कहता है कि आरंभ की बात छोड़ दो, अभी क्या करो, हमको आगे बढ़ना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। और एक चीज मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मरे हुए काम, ये बहुत गंभीर बात है हमारे जीवन में, मसीह जीवन में। पुराने करार में भले बात और मरे हुए बात, अच्छी बात और बुरी बात के बारे में लिखा गया है, लेकिन नया करार में मरे हुए कामों के बारे में लिखा है। मैं सोच रहा हूँ ये मरे हुआ काम क्या है जो हम करते हैं। ऐसा सोच सकता है कि मरे हुए काम ऐसा है कि कलीसिया में अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कि कुछ फूड सर्व करना चाहते हो, या कोई कुछ दान देना चाहते हो, या कोई आगे आकर पुलपिट में कुछ बोलना चाहते हो प्रभु के वचन, लेकिन आपका दिल में ये उद्देश्य रहेगा कि कोई मुझे प्रशंसा करेगा, या कोई भी बोले कि ये भाई कितना अच्छा सर्व कर रहे हैं फूड सर्विंग में, ये भाई देख कितना अच्छा जाकर दान पेटी में प्रभु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, कितना अच्छा 10वां हिस्सा दे रहे हैं। यानी अपने काम बहुत अच्छा है, मरे हुए काम भी अच्छा है, लेकिन आपका अंदर जो उद्देश्य क्या है, वो आपका उद्देश्य एक स्वार्थी की जैसा है, तो इसको हम कह सकते हैं मरे हुए काम। तो लेखक वही कहते हैं, अच्छे काम बुरे काम से मन फिराना काफी नहीं है, मरे हुए कामों से मन फिराना है। तो ये सिर्फ कई मसीह के अंदर देख सकता है कि मरे हुए काम हमारे अंदर रहेगा। कई बार हम ये इच्छा रखेंगे कि कलीसिया में मुझे कोई तारीफ करेगा, ये इच्छा रखेंगे, ये भी एक मरा हुआ काम है। हमारे जीवन से हर बातों में मसीह का नाम आगे बढ़ना चाहिए, या मसीह बढ़ता रहना चाहिए और हम घटते रहना चाहिए। तो ये चीज बहुत चेतावनी देती है कि मरे हुए कामों से हमें मन फिराना है। तो ये है एक नया जन्म पाने के बाद हम ये जो चीज है, जो मरे हुए काम से मन फिरा सकता है, प्रभु हमें मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुना उस वचन को मैं बहुत ही एंजॉय किया, ब्रदर सैम शेयरिंग कर रहे थे, और ब्रदर सैम इस तरह से बता रहे थे कि तुम सिद्धता की ओर बढ़ते जाना चाहिए, और इस तरह से बोल रहे थे कि हमको हमारा हमको थोड़ा सा कैंसर, थोड़ा सा टीवी से बोलो, जोर से आवाज आ रहा है ब्रदर मेरा? रेज करो। हाँ अभी या सो ब्रदर सैम जब शेयरिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज मुझे बहुत ही एक्साइटेड लगा, मेरा मन में बहुत ही प्रोत्साहन लगा, वो कि हमको सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए, और ये परमेश्वर का इच्छा है। सिर्फ हम पश्चाताप करते हुए वो करना चाहिए, बट इसके आगे भी हमको बढ़ना चाहिए। और ब्रदर सैम एक चीज शेयरिंग कर रहा था कि थोड़ा सा अगर हमारे जीवन में कैंसर रहेगा तो चलेगा क्या, या थोड़ा सा टीवी या कफ एंड कोल्ड। सो जब मैं सुन रहा था कि मेरे मन में ये जा रहा था, नहीं थोड़ा भी नहीं चाहिए कैंसर, थोड़ा भी टीवी नहीं चाहिए, थोड़ा भी कफ एंड कोल्ड नहीं चाहिए, कंप्लीटली मुझे हील होना है। हम सभी के अंदर ये डिजायर रहता है, बट यही चीज हम प्रभु के अंदर मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि हमको इस तरह से हमको सिद्ध कंप्लीटली यीशु मसीह के जैसे या परमेश्वर जैसे चाहता है सिद्धता की ओर हमको बढ़ना चाहिए। वो मुझे चैलेंजिंग लगा कि इस तरह से बढ़ने के लिए, जीने के लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो कुछ भी सुना। धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज ये जब मैं एनी को नहला रही थी तब एनी एक क्वेश्चन पूछ रही थी मुझे कि मम्मी हम बड़े होते तो कैसे पता चलेगा कि हम बड़े हो रहे हैं, या खुशी बड़ी हो रही है तो कैसे पता चल रहा है मम्मी कि खुशी बड़ी हो रही है। तो मैंने उसको वो एक चीज बताया कि एनी जब खुशी छोटी थी तो वो अपना जो सोफा है ना
वहां पे जो जाली वाला जो डिजाइन है ना, उसके अंदर से वो हमको देखती थी। अब वो बड़ी हो गई है तो वो सोफे के ऊपर से हमको देख पाती है। तो एनी का आंसर था, अच्छा मम्मी अपने घर पे सोफा है तो हम उस पे से हम मेजर कर पाते हैं कि खुशी बड़ी हो रही है। सेम वे हम भी अपने आप को मेजर करने के लिए एक चीज ये है कि एक ह्यूमन बीइंग जब बड़ा होता है, जब खुशी जब बड़ी हो रही है, तो 1 ईयर के बाद 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद 3 इयर्स, 10 इयर्स, इस तरीके से बड़ी होगी, वो वापस छोटी नहीं हो पाएगी। बट हमारा आत्मिक जीवन ऐसा है कि हम 20 इयर्स के होने के बाद भी 1 ईयर के अंदर हम जंप लगा सकते हैं, बैकस्लाइड हो सकते हैं। और मैंने देखा कि कभी कभी मेरी लाइफ में ये चीज होता है कि मैं आगे बढ़ने के बाद कभी कभी पीछे हो जाती हूँ, वही चीज मैं वापस गिरती हूँ। तो आई रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर फिर भी मुझे एनकरेज करता है कि बेटा इट्स ओके, अभी तेरे पास और भी टाइम है, तू और भी आगे बढ़ सकती है, सिद्धता की ओर बढ़ सकती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि हम अपने आप को ये मेजर करना है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए जो स्टेयरकेसेस है हमारे पास, तो वो डे बाय डे, हमारा दिन प्रतिदिन का, हम वो स्टेयरकेस चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ रहे हैं या उसी जगह पर हम अभी भी स्टैंड है या हम पीछे आ रहे हैं। जैसे एनी पूछ रही थी कि हम कैसे पता कर सकते हैं, द सेम वे हमको भी अपने आप को जज करना है कि हम क्या हमको अभी भी कोई कुछ बोलेगा तो हमको बुरा लगता है, या हमारे पीछे कोई बैक बाइटिंग करता है, या हमको कुछ सुनने में आता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, हमें अभी भी हमें उस चीज को लेकर बुरा लगता है, या कोई हमको कुछ हाय हेलो नहीं किया या हमको देखकर हमसे मन मुराव कर लिया, तो अब भी हमको उस चीज का बुरा लगता है, या हम भी अब भी हमारे दिल में वो हम कड़वाहट लेके उससे वो रिवेंज लेने का भावना लेकर रखते हैं, या अब भी हमारे अंदर वो कड़वाहट है, या हमारे अंदर वो परमेश्वर का नेचर है कि कोई कुछ भी करने दो प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, अभी भी हमारे अंदर वो लविंग एटीट्यूड है कि हम औरों को माफ कर सके। तो मैं रियली परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे और भी सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए हेल्प करे, और मैं अपने आप को जज करूँ कि प्रभु मैं कहाँ पर, कौन सी स्लाइड पर हूँ, मैं अभी आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ रही हूँ या बैक स्लाइड हो रही हूँ, वही जगह पर मैं खड़ी हूँ, स्टैंड हूँ। आई रियली थैंक गॉड आज के वचन के लिए, प्रेज गॉड।